forecasting and predictions for the last 2 days has been quite accurate, actually last 4 days. It is veering north-northeast. It is missing the big city of Karachi, which we had said it would, although initially 12 days ago there was fears that it would make landfall there. It will still make landfall, we expect, with a 10 to 7% change in its trajectory between Gujarat, India, and KT Bandar Thatta. That there is very little room for that change. But we are bracing for this impact. We are fairly prepared. Evacuations have taken place. Over 70,000 people have been evacuated safely, and many more voluntary evacuations are taking place elsewhere in the urban centers. We are trying to ensure that everyone is comfortable and safe. These are challenging conditions, and we will share updates with you from time to time. But finally, I'd like to say Pakistan is experiencing multiple heat waves and extreme weather events due to rapidly accelerated impacts of climate change. And for a small 1% contributor to global emissions, clearly this is a poster child of climate injustice. So with these words, I am happy to take questions later in the night. If you people have any questions around 10 o'clock, you can all reach out to me. In the middle, I will be on Zoom and other meetings. We are in an emergency standing, and we do hope that until now we have not lost any lives because of our very, I think, quick preparation and coordinated responses. The Prime Minister of Pakistan, the Government of Sindh, all first responders, including the 5 Corps Command and others, the Rangers deployed near and in Sindh, as well as Sindh Police, everybody, our DDMAs, NDMAs, and our provincial district disaster management authorities have all been on the ground, including our MPAs from that area. We are very grateful for everybody's coordinated, timely support. And I forgot to mention the maritime forces, the Navy, the Coast Guard, and all of them have been stellar in their constant heavy lifting and restraint in managing their own traffic in very difficult sea conditions. We will, of course, be facing a severe loss of productivity and downturn in growth and other economic activities in the impacted areas, which are still recovering from the 2022 great flood that Pakistan experienced. It was a record-breaking event. Those areas are near the coastal, are part of the coastal belt, and they are still impacted and they are still recovering with large pools and lakes of water standing there. This is part of sea level rise now also, and overheating of ocean temperatures that leads to such severe weather patterns. So with these words, I'm going to go back to our work of coordinating responses and hope that we can maintain and plan that we can maintain this level of coordinated relief and rescue and evacuations for our affected and impacted populations. Thank you very much, everyone. I want to thank the NDMA. Chief Minister Sahiban, PDMAs को, Coastal Development Authorities दोनों सूबों की, Fisheries, Livestock और Rescue Departments को मुकम्मल तौर पर इस वक्त एंगेज रखा हुआ है। हमारे साथ जो प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कराची में कमिश्नर कराची के अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स कराची के और इवन जो लसबेला तक के DCs को हमने इसको इन्फॉर्मेशन में और उनको अलर्ट इसमें है। आर्म फोर्सेज में वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आर्मी, JS हेडक्वार्टर, GHQ, नेवी, एयर हेडक्वार्टर्स, और जिनके मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ एक जॉइंट और एक सिंक्रोनाइज एफर्ट ने इस इवैक्यूएशन को और मैक्सिमम सेफ्टी को यकीनी बनाया है। इसमें हेडक्वार्टर 5 कोर, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड, मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर एंड पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी भी इसमें है। जो हमारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं, जैसे हमने सुबह भी बताया था, हमारे साथ UN OCHA, UNRC के अलावा हमारे जो इंटरनेशनल NGOs और पाकिस्तान की नेशनल NGOs के ग्रुप्स हैं, उनको भी हमने अभी अपने जो स्टॉक टेकिंग की बात हमने भी इसमें की थी, उनको हमने कहा कि आप अपने एसेट्स को और कैपेबिलिटीज़ को अपग्रेड कर लें
खासतौर पे वो लोग जो फ्लड्स 2022 के बाद उस इलाकों में अभी तक मौजूद हैं। जी शुक्रिया। और आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ जी, आप सबका भी शुक्रिया। और जो लोग इसमें सारे जो इदारे हैं, यहाँ से लेके कराची से लेके केटी बंदर से लेके इस्लामाबाद तक, जो मुस्तकिल नॉन स्टॉप राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में हैं, राब्ते में हैं, और राब्तों से ही हमें बेहतरी ला सकते हैं। सबका, सारे रिस्पॉन्डर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं कि जिस तरह उन्होंने अनथक बेलौस मेहनत की है इवैक्यूएशंस में, और अब रिलीफ एफर्ट में भी उन्हीं पर हम उन्हीं पर इन्हिसार होगा। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगे मानसून के भी महीने आ रहे हैं, और हम इस वजह से स्टॉक टेक में कह रहे हैं, अभी से कह रहे हैं कि सूबे अपने पास जो इक्विपमेंट चाहिए होता है डिज़ास्टर का, मसलन पहली चीज़ तरपालिन और टेंट होते हैं। इसमें तरपालिन नहीं यूज़ हो सकता बिकॉज साइक्लोन, मगर नॉर्मल वो स्टॉकिंग करना शुरू करें अपने अपने वेयर हाउसेज में, टेंट्स एंड दूसरे रिलीफ सप्लाईज जो हम जानते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। तो ये हमने सबको हिदायत देनी शुरू की है। जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म होती है स्टॉक टेक होगा, ऑलरेडी हो रहा है, और वो इस तरह आगे मूव करें। और इस हवाले से क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग होंगे जिनकी इमदाद एक तवील वक्त के लिए करनी पड़ेगी, कि जैसे मैंने कहा लोगों के शायद घर ना हों जो रिश्तेदारों के पास गए हैं। शहरों में तो फिर भी, कराची जैसे शहर में तो ज़ाहिर है घर रह जाएगा, लेकिन जो कोस्टल इलाके हैं वो ऑलरेडी बहुत मुतासर हैं, और एक गुर्बत की जद में भी, और उनका लाइफ स्टॉक और सारा एग्रीकल्चर, उनकी खेती बाड़ी, उनका जो डेली इनकम है वो बहुत मुतासर होगा। और इंसान हमारे लिए अहमियत रखता है, हर बच्चे का मुस्तकबिल हमने इंश्योर करना है। और प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ मानसून एंड साइक्लोन रिलीफ फ़ंड हमने उनसे कर लिया है क्लियर, उन्हें कहा जी कर दें, और वो ख़ुद हर घंटे इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, उनके टेक्स्ट आते हैं। और हमें भी हिदायत है कि हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ सबके साथ इन टच रहें। इंशाल्लाह आगे जो भी कोई बात हुई तो हम आपको तकलीफ़ यहाँ आने की शायद ना दें, लेकिन रात को भी हम अपडेट कर देंगे कि क्या सिचुएशन है सोशल मीडिया पे और वेबसाइट्स पे, और अनाउंसमेंट्स करके वी विल अपडेट यू कि कोई चेंज अगर होता है। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि ये साइक्लोन बिल्कुल ही बाईपास कर जाए पाकिस्तान को। दुआएं भी बहुत हैं, और कराची का शहर तो इस वक्त आई ऑफ द स्टॉर्म से तो बच गया जी, 2 दिन से तो वो नज़र आ रहा है। लेकिन अब बहुत अच्छी बात है, और दुआ करें कि ये बिल्कुल निकल आए। लेकिन इसके जो साइक्लोनिक विंड्स और रेन होगी उसके असरात जी बिल्कुल होंगे। बट अगेन आई सेड कि होप इज़ नॉट अ प्लान, उम्मीद एक मंसूबा नहीं होता। तो हमारा काम, हुकूमतों का काम होता है मंसूबे बना के रखें और तैयारी बिल्कुल एज पे हम रेड लाइन तक ना पहुँचें पहले से। आज पूरा बफर दिन था, हमारे सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसने बहुत लीड ली है, मिनिस्टर सारे, MPs सारे ग्राउंड पे हैं, जिन लोगों की तकालीफ है वो देखने, क्योंकि जहाँ जहाँ इतनी देखें चेंज होता है, लोग मूव होते हैं इस पैमाने पर, तो तकालीफ तो होती हैं लोगों में, और उनका तदारुक करना हमारा भी काम है, सबकी जिम्मेदारी है जी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर यू हैव क्वेश्चंस, प्लीज़ कीप देम शॉर्ट एंड शार्प। हम 2 दिन से आपकी से बात हो जाती है। एक तो आपने कहा कि 66,000 लोग इसमें हुए हैं, जिनमें से आधे जो है वो अपनी फैमिलीज के पास चले जी जी, तो वो कोई डाटा आप लोगों के पास है कि जी बिल्कुल है, दे आर ऑल मैप्ड विद अस। और दूसरा सर ये बताइए कि कम्युनिकेशन नेटवर्क की क्या सूरत होगी, क्योंकि सैलाब में भी हमने देखा और मरी में भी हमने देखा कि मोबाइल नेटवर्क आपका चला जाता है, सिग्नल्स नहीं होते, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जी। इसीलिए मैंने तदाबीर में भी कहा था जब एहतियात बरतने, तो टावर्स और वो ज़ाहिर वगैरह उनकी, ये तो आप तनसीबात का आप चढ़ के तो नहीं उसे प्रोटेक्ट कर सकते टावर को, बट देयर इज़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हर वक्त तरीक़ेकार होते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लोग अपने अपने भी जो टेलीफोन और डिजिटल इक्विपमेंट है उसको ज़रा मैनेज कर लें, चार्ज रखें ताकि वो चल सकें। अगर फ़ोन लाइन आपकी
लैंडलाइन डिस्कनेक्टेड है, बहुत से लोग अब यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, या बिजली का थोड़ी देर पावर आउटेज है, तो उसके लिए आप पहले से प्लानिंग करें जी। और ये हम लोगों से कह रहे हैं बार बार कि ये करना होगा, बट PTAs ऑल्सो एवरीबडी सब इस वक्त मुतहरिक हैं कि किस किस ने अपनी क्या जिम्मेदारी उठानी है। ये मल्टी सेक्टर एफर्ट होता है, मल्टी डिवीज़न मल्टी प्रोविंस नेशनल एफर्ट है जी। इसमें सब अपना अपना काम करेंगे लाइक अ वेल ऑयल मशीन, तो हम इसी तरह लोगों की जानें बचा सकेंगे। बिल्कुल मैम, वी रियली अप्रिशिएट जो हो रहा है और जैसा बर वक्त जो है बताया जा रहा है। 66,000 है या 73,000 हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं? देखिए आज का नंबर मेरे पास सर ने 73 73 आपने बताया, 73 आपने मुझे अभी बताया। ओके, 70 क्योंकि 2 फिगर्स आए। बट देखिए इसमें 10 to 20% ऊंच नीच होगी, क्योंकि बहुत से पॉपुलेशंस अपने ही लोगों के पास जा रहे हैं who then are not mapped। कोशिश हमारी ये है कि जो जो जा रहे हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि चेक करते रहें कि वापस जब वो आएँ तो वो बेयार और मददगार ना हो, शेल्टरलेस ना हो। और फिर ये भी जाहिर है, इसलिए हमने UN OCHA और यूनाइटेड नेशंस को अभी से दे आर एंगेज विद अस, वो ऑलरेडी कराची पहुँचे हुए हैं। UNRCV जो रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं, और वो हमारे साथ जूम पे थे शाम तक, कल भी होंगे। एंड जब हमारा एक्सटेंसिव रिहैबिलिटेशन एफर्ट शुरू होगा, जो पिछली दफ़ा का ख़त्म नहीं हुआ है, हम इंशाल्लाह उनसे भी इमदाद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसका रुख चेंज हुआ है, जैसा ये शुमाल मशरिक की तरफ गया है थोड़ा सा जी, जो बट ये प्रोजेक्टेड था जी, लेकिन रूट वही जा रहा है। तो क्या हम एक्सपर्ट्स बता सकते हैं कि खुदा न खास्ता ये कहीं फिर दोबारा इसका रुख चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए स्टॉर्म तो स्टॉर्म होता है, एग्जैक्टली। अब मेरे आपके हाथ में नहीं है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको मेंटेन करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो उसको कुछ जो तकवीत देते हैं, कुछ उसको उसकी कमी इनकरेज करते हैं। इस वक्त जो प्रोजेक्शंस चल रहे हैं, फिर मैं आपसे कहूँगी 17 स्टेशंस इंटरनेशनल जो हैं इंक्लूडिंग सुपार्को, उनकी मॉडलिंग पर ये चल रहा है। और ज़ाहिर इसमें हमारे अपने सिंध PDM PMD और यहाँ का PMD लीड भी उनको लेना पड़ता है, बिकॉज इट्स योर कंट्री। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाएगा सुपार्को मैनेज करेगा, वो पहले होगा। बट ये हम इस तरह नहीं छोड़ रहे हैं विदाउट वेरिफिकेशंस एंड जॉइंट मॉडलिंग। तो जॉइंट मॉडलिंग इस वक्त दिखा रही है, जो आप देखते हैं ना बार बार, वो इंटरनेशनल मॉडलिंग है और उस पर ये ट्रेजेक्ट्री है। वो अब 10% चेंज होती है। जो शॉर्ट टर्म वाली प्रेडिक्शन होती है वो ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ होती है, रिलायबल होती है। अगर 5 दिन पहले जो प्रेडिक्शन थी उसमें दोनों तरफ ट्रेंड दिखाए जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम नज़दीक होते जा रहे हैं, 2 दिन से 3 दिन के जो प्रेडिक्शन थे वो रिलेटिवली मोर रिलायबल हो रहे हैं। और अभी तक जो प्रेडिक्शन यही हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों में इसका इंडिकेशन नॉर्थ ईस्ट होगा, और उसी वजह से हमने इसको ज़्यादातर रिलेटिव कंफर्मेशन की तरफ चले गए कि जो हमारी प्रोजेक्शंस थी 2 से 3 दिन पहले, आज वो तकरीबन 80 to 90% इसी तरह है। और लैंडफॉल इंडिकेटर अभी तक इसको मज़ीद कंफर्म करते जा रहे हैं। तो अभी जो हमारा लैंडफॉल अभी तकरीबन 16 से 17 घंटे दूर है, तो उसमें मज़ीद एक्यूरेसी आती जाएगी। बट दिस इज व्हाट वी हैव। 24 का सवाल करना ज़रूरी है। वो हाँ, आप समा में चले गए तो आप लोग इवैक्यूएशंस की तेज़ी में रहते हैं, की तरह तेज़ी में होते हैं। आपके पास आ रहे हैं जी। चाह रहे कि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा आगाह हो। सर आपने भी बताया, मैडम आपने भी कहा कि दफ़ा 144 नाफिज कर रहे हैं। अब तक दफ़ा 144 की कितनी खिलाफ वर्जियाँ आई हैं, कितनों के खिलाफ? तो आपको पता है जी दफ़ा 144 को कितने लोग कहते हैं दफ़ा, ये भी यहाँ पे होता है। ये जो कानून की खिलाफ वर्जियाँ हैं, इसी की वजह से लोग ट्रबल में होते हैं, फिर मुश्किलात का सामना होता है, ट्रेजडीज़ घरों में होती हैं। जब आपको बार बार मैं कह रही हूँ, अहलकार कुछ कह रहे हैं इस वक्त तो सुन लें। और इतने बड़े पॉपुलेशन को पुलिस करना बहुत मुश्किल होता है। आप कोऑपरेशन, लोगों की ताउन मांगे तो बेहतर होगा, उनको समझाने की कोशिश करें, जो हम 3 दिन से कर रहे हैं, और उसमें काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ है। मैडम प्रेडिक्शन है कि 300 मिलीमीटर तक कराची में बारिश होगी जी नहीं 110 मैंने अर्ज किया था जी। 110 फिर भी बहुत बारिश है जिसमें कराची जी 330 कोस्टल एरियाज की बात। ओके, तो कराची में भी सैलाबी सूरत हाल होगी, हाँ। तो जी? कराची में भी सैलाबी सूरत हाल हो सकती है।
330 मिलीमीटर की इस वक्त नहीं, जब बारिश होगी कराची में तो कराची के अंदर अपनी जो सूरत हाल है, अर्बन फ्लडिंग। जी Urban आप flooding। शायद नहीं आए हैं, हम 2 दिन से अर्बन फ्लडिंग की बात कर रहे हैं। उसमें कराची, कंटोनमेंट, DHAs, KMC सब इन्वॉल्व हैं और DHA की काफ़ी अग्रेसिव इवैक्यूएशन चल रही है बिकॉज उनके काफ़ी डग अप इलाके हैं इस वक्त, तो शायद एक वक्त में उन्होंने उनको रोडें भी क्लोज़ करनी पड़ रही हैं, बंद करनी पड़ रही हैं, काफ़ी कुछ वहाँ हो रहा है। लेकिन बाकी इलाकों में सी व्यू वगैरह वहाँ भी इवैक्यूएशन हुई हैं क्योंकि देखिए कोस्टल फिर भी बेल्ट है ना वो। और फिर एक वीडियो आता है, लोग दिखाते हैं कि पानी चढ़ा हुआ है या वेव्स नज़र आ रही हैं तो पैनिक भी फैलता है। पैनिक फितरी चीज़ है, प्लीज़ आप हंसे मत, ये होता है लोगों के अंदर। कोई ख़ास तौर से किसी का फैमिली मेम्बर अकेला और कहीं वो दूर हो तो दिस हैपन्स। हमें इसको अकोमोडेट करके लोगों को हौसला देना है कि करना आपने क्या है, बजाय इसके कि आप पैनिक करें और एंजाइटी में गलत फैसले करें और कूद पड़ें